प्रदान कर देंगे। या ये कह रहे हैं कि अति प्रियाय तदपि दीयते, તે દેવ વડે એટલે શિવ અને વિષ્ણુ વડે અતિ પ્રિય જીવ એમના પોતાના ભક્તને તે પણ અપાય છે। પર દીયતેને આગળ એક કોમા લગાડી દો એટલે સમજમાં આવે તમને અર્ધવિરામ કે ક્વચિત એવ આ સાર્વત્રિક નિયમ નથી, રેર કેસ, अपवाद रेर। क्योंकि नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः। अब इतनी बात को और हम समझें, अब देखो ये अंतिम पंक्ति में शास्त्र को एक उदाहरण भी दियो है श्री पुरुषोत्तम चरण ने कि जामे शिव ने मोक्ष प्रदान कर दीनी है। मय को और याई प्रकार सु 13वें पन्ना पे उपरिचर वसु जो हते उनको विष्णु ने भोग प्रदान कियो। ये दोनों ही कथानक जो है हमको श्रीमद् भागवत में मिल जाएंगे। तो ये उदाहरण आगे वाक्य। अब या के बाद की पंक्ति अगर अपन पढ़े तो अपन को स्पष्ट हो जाएगा कि तेन देयरफॉर, तेन यानी देयरफॉर अति प्रियाय ददाति इति निश्चयते। તેથી એવું નિશ્ચય થાય છે કેમ કે આવા શાસ્ત્રના ઉદાહરણ મળે છે। शास्त्र को भार और शास्त्र को आधार ये कितना आवश्यक और अपेक्षित है ये अपन विचार के देखें। अब देखो तीसरी पंक्ति में ऊपर से चौथी पंक्ति देखो, मैं कह तो जा रहे हूं, अब समझने को प्रयास करियो समय ज्यादा न जाते हुए। अतः परम, अब यहां या के बाद तयो हो शास्त्रयो हो यत् साधनम प्रतिपादितम, जो पाशुपत यानी शैव तंत्र और वैष्णव तंत्र दोनों शास्त्रों की जो साधन रूपता बताई, वाक्य करने पे भी क्यों कोई की अति प्रियता कथम कस्यचित एव अति प्रियत्वम इति आकांक्षाया। તે શાસ્ત્રમાં કહેલા સાધનો કરવા હોવા છતાં પણ કોઈકને જે અતિ પ્રિયતા કેમ સિદ્ધ થાય છે? એક વાત તો સાચી છે ને કે જે શિવ ભક્ત છે એમને શૈવ તંત્રનું અનુકરણ કરવું પડશે અને જે વિષ્ણુના ભક્ત છે, વિષ્ણુ ભક્ત છે એમને વૈષ્ણવ તંત્રનું અનુકરણ કરવું પડે। હવે જ્યારે બધા જ અનુકરણ કરતા હોય તો પછી તમે અતિ પ્રિયાય આપે છે એવો નિષ્કર્ષ કેવી રીતે કાઢ્યો? અતિ પ્રિયાય કે બધા જ એક સરખા સાધન કરતા હોય તો કાંક તો બધામાં અતિ પ્રિયતા સિદ્ધ થવી જોઈએ અથવા તો કોઈમાં ના થવી જોઈએ। એનું કારણ બતાવે છે કે નહીં, એવું નથી, પરંતુ એ શાસ્ત્રમાં જ કહેલા કંઈક વિશિષ્ટ જે સાધનો છે એ સાધનો કરવાથી એ અતિ પ્રિયતા સિદ્ધ થાય છે। તેથી पांचवी पंक्ति ना छेल्ला शब्दों ने आप वांचो कि शास्त्रांतरोक्तात् तदुक्ताद् वा साधनांतरात्।
હવે આના બે અર્થ થયા કે એક અર્થ એવો નીકળે કે શાસ્ત્રની સંપૂર્ણ રાશિ ઉપર દ્રષ્ટિ નાખી અને ક્યાંકથી અતિપ્રિય થવાનું સાધન સ્વીકારવામાં આવે તોય વાંધો નથી, પણ છતાંય કંઈક કોઈકને આ ખૂચતું હોય તો એ શાસ્ત્રમાં જ કંઈક બીજી વ્યવસ્થા પણ, ગૂઢ વ્યવસ્થા પણ, કંઈક ઊંડાણમાં કંઈક બીજી વ્યવસ્થા પણ કહેવામાં આવી છે અને ત્યાંથી એ સાધનો લઈ લેવા જોઈએ. અને એ સાધન છે તદીયતા અને તદાશ્રય. એટલે નિયતાર્થ પ્રદાનેન તદીયત્વમ તદાશ્રય. આજે તદીયત્વમ તદાશ્રય આવ્યો ને, આની વાત આવી. હવે અતિપ્રિયાય એને પણ સ્પષ્ટ કરી દીધો. નહીં તો નિયતાર્થ પ્રદાનેન, નિયતાર્થ પ્રદાનેન આ નિયતાર્થ પ્રદાનેની જે વાત છે તેના જે અતિ પ્રિય ભોગ છે તે શિવ મુક્તિને ભોગવે છે, વિષ્ણુ લક્ષ્મીનો ભોગ કરે છે, એ એમના નિયતાર્થ નિયત ભોગ છે, નિશ્ચિત કરાયેલા ભોગ. તેથી એને સ્પષ્ટ કરું છું. એ આપવા માટે અતિપ્રિય પોતાના શિવનો અતિપ્રિય શું? મુક્તિ. અને વિષ્ણુનો અતિપ્રિય શું? ભોગ. એટલે એ તેના નિયત ભોગ છે. મારી વાત સમજ્યા? શિવનો નિયત ભોગ શું? મુક્તિ. અને વિષ્ણુનો નિયત ભોગ શું? ભોગ, લક્ષ્મી. એટલે એ જે નિયતાર્થ છે, નિયત પદાર્થ છે, એટલે કે શિવ પોતે મોક્ષને આપે અને વિષ્ણુ પોતે ભોગને આપે, ત્યારે નિયતાર્થ પ્રદાન થયું ને? ના, આવી વાત ખ્યાલ. શિવનો નિયત ભોગ શું છે? હંમેશા શેનો ભોગ કરે છે? મુક્તિ. અર્થ એટલે પદાર્થ, નિયત અર્થ. એટલે શિવનો જે નિયત અર્થ છે એ મોક્ષ છે, વિષ્ણુનો જે નિયત અર્થ છે એ ભોગ છે. હવે બંને કંઈક એવું આવી બની પડ્યું હોય કે એમને પોતાના એ નિયત અર્થ જે અતિપ્રિય છે એ જ દાન કરવાના આવે તો એના માટે શું જોઈએ? એના માટે શું કરવું પડે? અતિપ્રિયાય. પણ એ અતિપ્રિયતા કેવી રીતે સિદ્ધ થાય? તો તદીયત્વમ તદાશ્રયમ, તદાશ્રય. કહેવાનું હું આપને ત્યાં સમજાવી. વિચારની જે સીડીઓ છે ને, એ વિચારની સીડીઓનો ક્રમ આપ ધ્યાનમાં રાખો. પહેલા એક વાત સમજાવી સામાન્યતા, કે સામાન્ય રૂપમાં શિવતંત્ર અને શૈવ તંત્ર અને વૈષ્ણવ તંત્ર પ્રમાણે શિવથી ભોગ મળે અને વિષ્ણુથી મોક્ષ મળે, એક સામાન્ય ક્રમ છે. પરંતુ પોતાની સર્વ કામનાઓ પૂર્તિ કરવી હોય, સર્વવિધ પુરુષાર્થ જો સિદ્ધ કરવા હોય તો સર્વવિધ પુરુષાર્થ માટે અતિપ્રિયતા જોઈએ પોતાના ઈષ્ટની, એવું સમજાવવામાં આવ્યું છે. આપના જે પ્રશ્ન છે ને એ પ્રશ્નો અવકાશ છે નહીં, એને આપ વિચાર. હું શું કહું છું કે આટલી વ્યવસ્થા આ રીતે એક સામાન્ય વ્યવસ્થા છે, પરંતુ જો સર્વવિધ પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો સર્વવિધ પ્રાપ્તિ માટે આ દેવની જ અતિપ્રિયતા સિદ્ધ કરવા માટે વિશેષ સાધના કરવી જોઈએ. આ બંને ક્યાંક તો તદાશ્રય કરો, ક્યાંક તો તદીયતા મેળવો. આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપીએ. અત્યારે શું સમજીએ? આપણે એક વાત ક્લિયર કરી લઈએ કે સામાન્ય ઉપાસના ક્રમથી શિવ ભોગ આપે છે અને વિષ્ણુ મોક્ષ આપે છે, પરંતુ
સર્વવિધ પ્રાપ્તિ માટે જો નિયતાર્થ પણ પ્રાપ્ત કરવા હોય તેના નિયત ભોગ, તો એના માટે ઉભય પક્ષમાં તદાશ્રય અને તદીયતા શિવમાં અને એવી જ રીતે તદાશ્રય અને તદીયતા વિષ્ણુમાં. અહીં સુધી વાત આપણી આવી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે નિયતાર્થ પ્રદાન જે છે એ પોતાના સ્વયંના નિયત ભોગ એ પદાર્થ આપવા હોય ત્યારે ક્યાંક તો તદાશ્રય હોય ત્યારે મળે અથવા તો તદીયતા હોય ત્યારે મળે. ટૂંકમાં સર્વવિધ ઉપલબ્ધિ, સર્વવિધ પ્રાપ્તિ, પૂર્ણતયા પ્રાપ્તિ તદાશ્રયથી થાય અથવા તદીયતાથી થાય, એ એનો સાર આવે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? शिव अथवा विष्णु, शिव अथवा विष्णु दोनों के ही संदर्भ में सर्वविध प्राप्ति जो है, सामान्य तो भोग और मोक्ष बता दिए, सर्वविध प्राप्ति अगर करनी है तो सर्वविध प्राप्ति के लिए अति प्रियता अपन को उपलब्ध करनी पड़ेगी और अति प्रियता के हेतु से तदाश्रय और तदीयता दोनों में से कोई भी एक मार्ग अपन को पकड़ना पड़ेगा. अब देखो, प्रत्येकम साधनन चैतत द्वितीयार्थे महान श्रम. એમાં હજી હેતુ આને સ્પષ્ટ કર્યો કે અતિ પ્રિયતા શા માટે કેળવવી પડે? કારણ કે બંને વસ્તુના દાનની એક નિશ્ચિત વ્યવસ્થા છે. शास्त्र में एक निश्चित व्यवस्था बताई गई है कि शिव भोग देने वाले हैं, विष्णु मोक्ष देने वाले हैं, और प्रत्येकम साधनन चैतत द्वितीयार्थे महान श्रमम. श्रम હવે બાકી अपन यहाँ शब्द में देख लें. श्रम है बोलेंगे अपन. अब एक पहले तदीयता और तदाश्रय के विषय की पंक्ति देख लो. 8वीं पंक्ति है तदाश्रय और तदीयत्व, तदीयत्वम तदाश्रय. या के लिए एक पंक्ति मिल गई नहीं पंक्ति, वहां में कह रहे हैं कि एतद उभयम पुराणोक्तम समुदितम प्रत्येकंच साधनम. समुदित और प्रत्येक, ये दो शब्द को समझने को प्रयास करो खाली, पीछे आगे चले. समुदित को मतलब है आश्रय और यानी शरणागति और भक्ति दोनों. और जैसे भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हो वो बिना शरणागति के तो भक्ति नहीं कर सकते. तो भक्ति करने वाले के प्रसंग में भक्ति और शरणागति समुदित साधन है, मिले भाई. और जो केवल शरण मार्ग पे जा रहे हो वहां के लिए प्रत्येक है. एक बात यहां बस. अब आगे या लिए कि नियतार्थ देने के लिए शिव और विष्णु दोनों को महान श्रम हो रहे हैं. ख्याल आए? देखो और चली नहीं रही है, बंद पड़ी 6 बजे ना. एक सेकंड बड़ी वह पहले वह शब्द समझा दो. प्रियता और तदाश्रय के लिए ये कह रहे हैं कि प्रत्येकम साधनन चैतत, ये वो प्रियता सिद्ध करने को प्रत्येक साधन है, यानी तदाश्रय भी साधन है और तदीयता भी साधन. लगे? क्योंकि अपने नियतार्थ भोग को प्रदान करने के लिए द्वितीय अर्थ, यानी भोग तो प्रिय है शिव, वहां मोक्ष तो प्रिय है शिव को. अब शिव को अगर मोक्ष देना पड़ेगा तो भोग तो दान कर ही रहे हो, तो भोग नंबर 1 भयो.
और मोक्ष नंबर 2 भयो तो द्वितीय के लिए, द्वितीय वस्तु देने के लिए उनको महान श्रम करना पड़ेगा। ये पंक्ति पहले स्पष्ट कर दें। अब यहां देखो, यहां देख लो तुम, क्यों वही तो आ रहे हैं, अपन भाई को तो देख रहे हैं, अपन वहीं देख रहे हैं, तो वो क्या बात नहीं समझ में आई, तो वही कर रहे हैं। ये 11वीं पंक्ति पे आओ, देखो 13वें पृष्ठ की 11वीं पंक्ति पे, वहां द्वितीयार्थे महान श्रम लिख रहे हो, बोल्ड टाइप में मिल गई। वो प्रत्येक कह रहे हैं ना, प्रत्येकम साधनन चैतर, तो वो प्रत्येकम साधनन चैतर जो है, ये श्री पुरुषोत्तम जी के अनुसार ऊपर जो तदाश्रय और तदीयता कह गए ना, वो अति प्रियता सिद्ध करने में प्रत्येक साधन है। यही लिए उनने फिर दोबारा वापस खोल के और समझाया कि प्रत्येक है ऐसा ही नहीं है, पर प्रत्येक में समुदाय भी रहे हुए, यानी दो भी मिले हुए रहे। भक्ति के केस में भक्ति और शरणागति दोनों हो जाएंगी तो वो समुदाय हो जाएगा। समुदाय मतलब कोई दो चीज को होना, दो या अधिक चीज को होना, और प्रत्येक यानी एक चीज को होना। तो श्री महाप्रभु को जो प्रत्येक स्टेटमेंट है, वाको मतलब केवल प्रत्येक ही नहीं है, समुदित भी है, समुदाय। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं कि सर्वेभ्यो साधारण्येन दीयमानाद व्यतिरिक्तो द्वितीय, जो साधारणतया दियो जा रहे हो, बाकी अतिरिक्त जो दियो गयो वो द्वितीय भयो है। तो साधारणतया शिव क्या दे रहे हैं और साधारणतया विष्णु क्या दे रहे हैं, वाक्य अतिरिक्त जो उनको एक दूसरे की चीज देनी पड़े वहां तक नहीं। क्या लिए कह रहे हैं महान श्रम यानी महान प्रयास, वाक्य लिए उनको प्रयास करना पड़े, यानी अपनी प्रिय वस्तु को देने के लिए मनुष्य को खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं। कभी कभी सोचियो कि जब अपन कोई भी अपने आत्मीय जुड़े भय आत्मीय या कोई बहुत अपने पूज्य स्थान पे कुछ देना चाहे और कुछ ध्यान आवे जब अपन को, तो कभी कभी जो दे रहे हैं वो वस्तुतः बहुत कम राशि हो ना, तो भी अभी अपन 2 बार सोचे कि इतना दे दे कि नहीं दे दे, फिर अपन कन्विंस करे कि नहीं ना આમ આ રીતે છે ને આવું છે ને એટલે આપણે આટલું નહીં આટલું કરો, એટલે અમે શું कुछ फिर पाछो चलो जाए। ये सबको अनुभव होंगे। આપણે કોઈ જગ્યાએ વ્યવહાર નભાવવો હોય તો ઘરમાં 2-3 મેમ્બર હોય, એક કંઈક સજેસ્ટ કરે કે આપણે કાનનું આપી દઈએ, કે ના ના કાનમાં તો એમાં 2માં તો આટલું જાય, નાકનું જ આપીએ ખાલી, એમાં 1માં પતી જાય। પેલો ત્રીજો કે ના ના આટલું ને આપણે કવર જ આપી દઈએ ને માથા કૂટની, આપણે પેલા 2 કાનના પછી 1 નાકનો દાગીના એનાથી ઉતરીને કવરમાં બસ આટલું આપી છૂટી। તમને એટલી કસરત કરવી પડી ને, પછી છેવટે પછી અપાઈને પણ કંઈક એવું તો નથી કે વધારે મુકાઈ ગયું, પછી એવું વિચાર આવે અને કંઈક કોઈ ઇન્સિડન્સ બને, આપવાના છે 101 અને પોકેટ જયારે કાઢીને ત્યાં કવરમાં મૂકવાના ત્યાં 500ના જ નોટ હોય, એટલે તે વખતે એટલો અવકાશ ના હોય કે કંઈ કરીએ તો 500 પછી મૂકવું તો પડે, પણ પડ્યા કરે કે 400 વધારે ગયા। એ અકળામણ ઘરે નીકળે કે એટલી કેમ સમજ નથી કે નોટ છૂટા મૂકે, આ એવો કઈક છૂટા તો મૂકવા જોઈએ ને। ન બનતું હોય તો મને કહેજો, હા હું મારું ઉદાહરણ પાછો લઈ લઉં। જયારે બને છે તો જે પરબ્રહ્મના અંશ તરીકે આપણામાં બની શકે એના ગુણાવતાર તરીકે શિવ અને વિષ્ણુ શા માટે ના બને? ચાલ
તેથી પહેલા એક એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે જો બંનેનું સામર્થ્ય એ રીતે હોય અને એકબીજાની વસ્તુ ન આપે તો એમની આ સંકીર્ણતા ન કહેવાય, એમાં એમનું ઔદાર્ય નષ્ટ થયું એવું ન કહેવાય? એનો જવાબ જો બહુ સુંદર આપ્યું છે કે તથા ચ નહીં ઉદારઃ પ્રયાસં કૃત્વા દદાતિ અપિતુ યત્ન સિદ્ધમ ઇતિ લોકે દૃષ્ટમ અતો ન દોષ ઇત્યર્થ. એ લૌકિક ઉદાહરણની જ વાત કરી છે. अब आगे के शब्द पे आवे. પછી એમને એક બીજો પક્ષ પણ આમાં કર્યો છે, જે એનો તાત્પર્ય ત્યાં છે, એનો કોઈ મતલબ નથી. अब अपनाए जीवा स्वभाव तो दुष्टा दोषा भावाय सर्वदा. या पीछे कहूं पड़ी, मैं एक बार यह पूरा कर लो ना, डिटेल में जाना संभव नहीं है. कुतो महान 13મી पंक्ति ઉપર 13મા પાના ઉપર कुतो महान એ પેલો શ્રમ મહાન કેમ થાય છે એમને એવી આકાંક્ષા થતા કે છે કે જીવાહ સ્વભાવ તો દુષ્ટાહ. એક તો જીવ કોણ છે અહીંયા કે શરીરાત્માન સલિંગા, એટલે સશરીર જીવોની વાત, એટલે સદેહ જીવોની વાત થઈ રહી છે અહીંયા. એટલે જે સદેહ જીવો છે અસ્મદાદી, તેઓ નીચેથી બીજી પંક્તિમાં આવો. અવિદ્યા કામ કર્મજ વાસના વિશેષ દોષ ભાજ. મળી ગઈ પંક્તિ. દુષ્ટ એ દોષ, જીવ દોષથી ભરાયેલા છે. એ દોષ છે અવિદ્યા કામ કર્મજ. અવિદ્યાના કારણે જે સમસ્ત કામનાઓ વગેરેનું જે કુતંત્ર ચાલે છે અને જે કર્મ થાય છે, ચેષ્ટાઓ થાય છે મન, વાણી અને દેહની. મારા સિદ્ધાંત રહેશના ગોકુલનું જે એક 4-5 દિવસનું એક કરેલું અહીંયા ગ્રંથનો એક ક્રમ, એ કેસેટ, એ સીડી કોઈ વખત લઈને સાંભળજો. એમાં મેં આ બાબતને ખાસી એ રીતે સમજાવ્યું છે. मैंने आपको समझाया तो अविद्या काम कर्मज वासना विशेष को जो दोष है वो जिनमें रहो भयो है वो दोषवान है. यानी जीव जो है वो स्वाभाविक रूप से दुष्ट है, क्योंकि उनकी जीव संज्ञा ही जब पड़ी है कि जब अविद्या ने उनको पकड़ लिया, और अविद्या के संबंध के कारण उनमें सब प्रकार के दोष उत्पन्न हो रहे हैं. ख्याल आया? स्थूल याल ये कह रहे हैं कि तथा च, अंतिम पंक्ति देखो, योग्यतार्थम, ऐसे दुष्ट जीवन को तत्तद योग भोग और योग्य के मोक्ष के लिए योग्य बनाने के लिए उनको महान श्रम हो रहे, क्योंकि जब तक उनके दोष दूर नहीं करेंगे तब तक वो तत्त प्राप्ति कैसे कर सकेंगे. क्रिया के सारे वचन दिए हैं.
या में और भी व्यवस्थाएं हैं। जिसे सामान्य एक बात समझाऊं, क्योंकि शिव जो है वो तम के तामस के अधिष्ठाता देवता हैं, तो उनको जीव को मोक्ष देने के लिए सात्विक और निर्गुण बनाने में बहुत श्रम पड़े, एक ये भी कारण है, ये समझिए। और विष्णु को वो श्रम अपेक्षाकृत कम पड़े मोक्ष देने में, क्योंकि विष्णु स्वयं सत्व गुण के अधिष्ठाता हैं और सत्व गुण के गुणावतार होने के कारण उनको निर्गुण तक पहुंचाने में बहुत एक स्टेप ही में सीधा पहुंचा दें, यानी उनको मोक्ष बहुत सरल पड़े। और भोग के लिए उनको वहां में रजोगुण और तमोगुण प्रधानता लानी पड़े तब भोग मिल पावे, वो नहीं तो भोग यानी वाकई भोग के लिए। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि ये दोनों देवताएं, दोनों गुणावतार जो हैं अपने अपने गुण के अधिष्ठाता देवता होने के कारण अपने अपने गुण से संबंधित कार्य तो इजीली कर देंगे, पर उन गुणंशु यदि विपरीत कार्य करने पड़ेंगे तो इनको महान श्रम पड़ेगा। ख्याल आया ना? क्योंकि सत्व गुण के अधिष्ठाता होने के कारण विष्णु निर्गुणता में मोक्ष के लिए वह बहुत जल्दी ऊपर उठा देंगे, तो क्योंकि उनको हमें श्रम नहीं है। ऐसे ही विष्णु को, ऐसे ही शिव को अगर भोग प्रदान करने हैं तो भोग प्रदान करने के लिए उनको जरा भी श्रम नहीं करना पड़ेगा, सीधो प्रदान कर देंगे। लेकिन उनको मोक्ष और उनको भोग अगर इनको परस्पर बदल दिए जाएंगे तो उनको पहले जीवन को उतना उच्च कक्षा में उठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, या उनमें वाह तरह की जो है सो गुण उनमें संपादन करने पड़ेंगे, तब जाके उनको भोग या मोक्ष मिल पाएंगे। एक ये भी कारण है। या मैं इस साथ वचन भी दिए हैं, पर मैं उनको वचन उनको नहीं बता रहे हूं, आपको आशय इतना ही है। अब नीचे से चौथी पंक्ति पढ़ो कि एवं साधक दोष वशेन, जो शिव की उपासना करने वाले हैं और जो विष्णु की उपासना करने वाले हैं, मिल गई पंक्ति। तद दाने तयोः श्रम बाहुल्यम साधयित्वा, तो ये समझा के कि यदि जो उनके साथ जो दान निश्चित है, शिव के लिए भोग और विष्णु के लिए मोक्ष, ये एक सामान्य व्यवस्था और विशेष व्यवस्था जो बताई तदीयता और तदाश्रय के द्वारा, वह में परस्पर दोनों प्रकार के भोग प्रदान कर रहे हैं, ये भी बात बता दी। परंतु वहां में उनको श्रम है, ये समझा के यहां साधक के दोष के कारण, क्योंकि साधक में उतनी उनको उन्नति करनी पड़ेगी या वह भोग के लिए अवनति वहां तक लाना पड़ेगा, तो वाके लिए श्रम बहुल, उनको श्रम ज्यादा पड़ेगा, ये सिद्ध करके तद दोष निवृत्त ये यत् साधकस्य आवश्यकम तत्रत्यम शास्त्रांतरीयम व साधनम तदाहुः दोषाभावाय इति। अब दोष के अभाव के लिए साधक को क्या करना चाहिए, ये तो जो आराध्य देव है उनकी व्यवस्था बता दी, पर आराधना करने वाले, साधना करने वाले जीव को उनकी तदाश्रय या तदीयता सिद्ध करने के लिए या दोष निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता रहे हैं यहाँ। तो वो कह रहे हैं कि दोषस्य दोषाणाम व अभावाय। अब देखो पहले मूल में देख लो, जीवा स्वभावतो दुष्टा दोषा भावाय सर्वदा। अब अपन दोषा भावाय शब्द पे चल रहे हैं। जीव स्वभाव से दुष्ट है, ये बात अपन ने देख ली, क्योंकि जीवन को अविद्या से संबंध है और वाक्य कारण जितने भी स्थूल धर्म उनमें उत्पन्न हो रहे हैं, वाक्य कारण उनमें सारे के सारे दोष आ रहे हैं। अब या के बाद जो उन्हें दोषा भाव है, यानी दोष के अभाव कैसे हो, दोष के अभाव के लिए सर्वदा कह रहे हैं, कोई सीमित काल के लिए नहीं कह रहे, सर्वदा। सर्वदा क्या करना चाहिए, श्रवणादि ततः प्रेमणा सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति। श्रवण मनन चिंतन कथन इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि वह श्रवण मनन चिंतन करने से स्नेह सिद्ध होएगा और स्नेह के आधार पे ही तदाश्रय हो पावेगा या तदीयता सिद्ध हो पावेगी।
और वाही सु सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति, वह तदाश्रय या तदीयता सु ही सारे कार्य सिद्ध होंगे। ठीक है। अब यहां अंतिम पंक्ति देखो 14वें पन्ना पे, कि दोषण के दूर करने के लिए, बोलूं, दोष के दूर करने के लिए निवृत्त्यर्थम, दोष को सुनिवृत्ति प्राप्त करने के लिए सर्वदा, सर्वदा यानी काल अविच्छेदेन, यानी समय में व्यवधान डाले बगैर, काल अविच्छेदेन, काल के विच्छेद आ जाए, काल के प्रतिबंधक आदि आ जाए कि भाई 8 दिन की और के बाद महीना भर नहीं कियो या 4 दिन नहीं कियो, ऐसे नहीं, सदा सर्वदा। यानी कह रहे हैं कि काल के अविच्छेदेन श्रवणादि, श्रवणादि नाम तन्नवकम, तत्तदेव संबंधी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो है ये 9 की 9 आ जाएंगे। ये जो श्रवणादि नवक है, या की चर्चा हमेशा होती रही है, वो श्रवणादि नवक के लिए कह रहे हैं। ख्याल आया? या त्रिकम पंचकम वा, जैसो जासु जो साधन हो पा रहे हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण, या वाके बाद और अपन ने अर्चन इत्यादि को ले लियो, ये सब तो ये 2 विभाजन में बांटते हैं ना। या ये कह रहे हैं कि तन नवकम वा त्रिकम वा, ये वाक्य को मैं तुमको संदर्भ भी लिखा दूं परमानेंट। ये तुम्हारे भागवत में लिख रखो, फिर तुम देख लीजिए, हम भले जिनको निकालना भले निकाल लीजिए। 7वां स्कंद 5वां अध्याय और 23वां श्लोक है, 23 और 24। 7, 5, 23, 24। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण, पाद सेवन और अर्चन, या प्रकार से फिर 9, 9, 7, 5, 9 इत्यादि जो यथाशक्ति वो क्रम वाक्य बता रहे हैं। और वाक्य अतिरिक्त यथाशक्ति कोई सवाल नहीं है। यहां में अमुक अमुक जगह आके अलग अलग विधान दीजिए, ठीक है ना। देखो, यत तत्रोक्तम 15वें पन्ना पे आओ, जो वहां कहे गए उन्होंने शास्त्र में, शैव तंत्र में और वैष्णव तंत्र में, या शास्त्रांतर सु भी अपन सारे समस्त शास्त्र राशि को मान के और कहीं सु विधान जो है वो भी प्राप्त लागू किया जा सके। शास्त्रांतरोक्तम तत्तद विषयकम तत्कार्यम इति शेषः, ठीक है। अब देखो, ततः तत् तस्मात् क्रियमाणात्, या प्रकार से ये श्रवण मनन चिंतन इत्यादि करने पे क्रियमाणा जाते न प्रेमणा, जो प्रेम सिद्ध होएगो, तत्शास्त्रीय पर विषयकेण स्नेहेन, ये याद रखिए। शैव शास्त्र में यानी शैव तंत्र में पर ब्रह्म कौन है? शिव। और पंचरात्र वैष्णव तंत्र में विष्णु है, यानी वो पर शब्द कह रहे हैं। तत्शास्त्रीय पर विषयकेण, वहां जो परम तत्व बतायो है, जो वाक्य विषय है, वाक्य लिए स्नेहेन सर्वम कार्यम तदीयत्व तदाश्रय रूपम ही निश्चयेन सिद्ध्यति। अब देखो नीचे 17, 18 और 19 ये तीनों एक साथ यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने समाविष्ट किए हैं। मोक्षस्तु सुलभो विष्णो भोगश्च शिवतस्तथा
समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वम भवेत् ध्रुवम। जब हमने ये बात समझ ली नहीं कि शिव को यदि मोक्ष देनी पड़े और विष्णु को यदि भोग प्रदान करना पड़े, तो जो साध्य देव है उनको श्रम है और साधक को भी अपनो साधनानुष्ठान उतना ही तीव्र करना पड़े। या बात को पूरी को कह के पुनः वह को समिंग अप कर रहे हैं, वह को समअप करके कि भाई याद है ढंग से हमने एक बात देख ली नहीं कि मोक्ष जो है वो विष्णु सुलभ है और भोग जो है शिव सुलभ है। अब ये बात इतनी कह के कुछ जो विशेष कहना चाह रहे हैं वो यहां से प्रारंभ करेंगे। ये 17वें श्लोक तक सब्जेक्ट कंक्लूड हो गया। जो पराश्रय मोक्ष को, यानी स्वाश्रय और पराश्रय, तो पराश्रय मोक्ष को जो स्वरूप है तो शैव तंत्र में और विष्णु तंत्र से, क्योंकि प्रधान देव तीन ही है। ब्रह्मा को मोक्ष के साथ संदर्भ अपन को बता दियो स्पष्ट करके कि वहां वो संदर्भ नहीं है। यानी ये शिव और विष्णु दोनों से ही भोग और मोक्ष दोनों देवताओं से मिल सके, पर उन शास्त्रन में एक ऐसी व्यवस्था बताई गई है कि अमुक वस्तु अमुक देव से मिलेगी और अमुक से मिलेगी, भोग केवल शिव से मिलेगा, मोक्ष केवल विष्णु से मिलेगी। परंतु या में कोई बंधन नहीं है। अगर उनको कोई अति प्रिय भक्त मिलेगा तो वह भक्त को वो दोनों ही वस्तु भी प्रदान कर सकेंगे। और देखो भोग जो शब्द है, या को मेहरबानी करके अपने संकुचित वृत्ति से केवल लौकिक भोगन के साथ वह सीमित मत कर दीजिए, क्योंकि भोग को संबंध तो सालों के सार्ष्टी सामीप्य और सारूप्य तक जाएगा। यानी ये शास्त्र समझने के लिए कुछ आधार जो जरूरी है उन पर ध्यान रखिए। जैसे मैंने चेष्टा के रूप में कर्म, ज्ञान और भक्ति की एक, स्नेह की एक जो बात कही, वह की व्यापक एप्लीकेशन। ऐसे भोग शब्द जो है ना, वो भोग शब्द बहुत व्यापक है। वह को कुछ सीमित अर्थ में ले लेनो, वो हम शास्त्र के समझने में हमारी अयोग्यता को परिचायक है। इतना ध्यान रखें। और तदीयता को समझा रहे हैं कि समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वम भवेत् ध्रुवम। तदीयता सिद्ध करने को जो तत्त देव के साथ संबंध है वो है आत्मनिवेदन को। जो अपन ने 9 साधन के विषय में पढ़ो, जो अपन ने लिख लियो कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये आत्मनिवेदन भी इन दोनों देव की उपासना की पृथक पृथक इनके संग आत्मनिवेदन के संबंध भी जाएगा। तो एक बात कुल मिला के ये समझियो, श्री महाप्रभु अपन को जो दिशा बताना चाह रहे हैं, जो मैं आज सवेरे से दोपहर से ये समझा रहा हूं, तो जब मैं सबसे पहले मैंने समझाई कि विरक्ति की जहां आवश्यकता है, अगर वैराग्य विरक्ति को एक बोध जागृत नहीं करोगे तो भगवान मार्ग पर चलने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं बनेगी। यानी ये एक बहुत ही स्थूल सामान्य कोटि के वैराग्य से लेके तुमको
जो सख्य भक्ति है वाकई सूक्ष्मतम वैराग्य तक पहुंचने के लिए कि जहां केवल तुम तत्सुख विचार सको, स्वयं को केंद्र में सु हटा के वहां तक की जो सारी यात्रा है वाकई लिए वैराग्य जरूरी है। और ये वैराग्य तब स्वस्थ बनेगो कि जब हम अनुरक्ति सु विरक्ति तक जाएंगे, अनुरक्ति सु विरक्ति तक हम जाएंगे। यदि हम कोई प्रकार के दुखन सु विरक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो हमारा पुष्टि मार्गी है, वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य सर्वप्रथम या लिए जरूरी है कि वैराग्य के बगैर तुमको तुम्हारे भगवान मार्ग को जो महत्व तुमको आना चाहिए वो महत्व नहीं आ पाएगा। और वाकई बात तुम्हारे लिए आवश्यक है प्रौढ़ विचार। वो प्रौढ़ विचार को मतलब ही है श्रवण मनन चिंतन और कथन। और वह श्रवण मनन चिंतन के लिए तुमको कहीं ना कहीं मन में अपने अंतःकरण में कहीं ना कहीं एक चित्तवृत्ति के संयम को तुमको कार्य निश्चित सिद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम वो चित्तवृत्ति के संयम को कार्य नहीं करोगे तो श्रवण मनन चिंतन और कथन जो है वो हमारा श्रवण श्रावण सब कुछ व्यर्थ होता चलो जाएगा। और वो संयम जो अगर है तो संयम के पश्चात जो दो कदम जो दो और सोपान बाकी हैं वो है तदाश्रय और तद्वत। ये क्रम पूरी बात समझ में आती हो तो हमको संपूर्ण शास्त्र को एक विहंगम दृष्टि बिंदु श्री महाप्रभु ने यह प्रदान किया जब हम आज 4 दिन से देख रहे हैं। वे संपूर्ण शास्त्र को सार है कि कर्म संभव नहीं है, केवल प्रौढ़ विचार वैराग्य सहित प्रौढ़ विचार, प्रौढ़ और परिपक्व विचार और मन को संयम और तदाश्रय सु यानी जो अन्य देव को जो आश्रय और वो देव भी दो प्रधान देव संपूर्ण अपने शास्त्र की व्यवस्था में जो प्रधान देव है विष्णु और शिव, उनको आश्रय करनो। ये जो एक सारी बात बताई ये वको ओवट यानी ऊपर को ये पूरे शास्त्र को दृश्य बतायो कि शास्त्र में अब ये दो ही व्यवस्था संभव है, एक प्रौढ़ विचार ज्ञान और मानसिक संयम सु और दूसरा विकास संभव है तदाश्रय सु और तदीयता सु। ये दो बात समझा के हमको ये बात श्री महाप्रभु ने समझाई कि देयरफॉर शास्त्र को मूल आशय है हमको अपने भगवान मार्ग पे विरक्ति पूर्वक प्रौढ़ श्रवण श्रावण करते हुए श्रवण चिंतन करते भय मन को संयम अपने आप के मन को थोड़ा संयम करके और हम तदाश्रय और तदीयता में प्रवेश करें। ये हमारा पूर्व बालबोध को ऊपर को और अंतर रहो भयो को संकेत है, दिशा। आई होप वी आर गेटिंग। और आज हो सके कि 3 दिन बेचैनी रही हो 4 दिन, पर आज यह बात को संतोष तुमको जरूर भयो हो कि बालबोध हमारे लिए कितनो सहायभूत है। ये बात आज तुम्हारे ख्याल में आई है क्योंकि बालबोध हमको अति अनिवार्य विरक्ति, जो विरक्ति हमको भगवत अनुरक्ति तक उठावेगी, असल में भगवत प्रेम तक, सच्चे भगवत भक्ति तक उठा पाएगी, ऐसी हमको समझ होनी चाहिए। अगर वैराग्य नहीं है हमको नित्यानित्य पदार्थ के विवेक से तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। अगर ये नित्यानित्य विवेक हमको नहीं आ पाया तो हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो या प्रकार से वैराग्य प्रौढ़ श्रवण श्रावण और मन को संयम और तदाश्रय और तदीयता, बस ये हमारे लिए बहुत बड़ा राजमार्ग श्री महाप्रभु ने खोल के बता दिया और यही को हमको स्मरण रखना है। अब इतनी बात कह के श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ध्रुवम निश्चित रूप सु तदीयता होगी यदि समर्पण हमारो बिल्कुल स्पष्ट और सच्चो है। तो पांचवी पंक्ति देखो यहां अतः परम जो लिखो 17वां श्लोक यहां पूरा हो गया, एक व्यवस्था कंप्लीट हो गई। अब जो वाकु समिंग अप चल रहे हो समर्पण वहां 5वीं पंक्ति देखो क्या कह रही है। 5वीं पंक्ति पढ़ो पहले, कहां पढ़ रहे हो?
अरे प्लीज प्लीज 15वें पन्ना पे आए कि नहीं हम, और पंक्ति हम 17वां श्लोक जहां पूरा हो गया हुआ के बाद 5वीं पंक्ति हम क्या बोल रहे हैं, मदीया नाम, बस वहां बोलो, बस 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 दैट्स ऑल, मदीया नाम मिल गया ना, मदीया नाम ममच, जो मेरे संग जुड़ रहे हैं, मेरे ममता सु और मैं, मेरा जितनो भी अहम मम और देह गेह को परिकर है, यथेष्टम विनियोगम प्रभु करोतु इति बुद्धिर्हि आत्मसमर्पणे कारणम। या प्रकार को निश्चय करना आत्मसमर्पण में कारण है। मदीया नाम, मेरे से संबंधित जो पदार्थ व्यक्ति मात्र हैं वो सब, और ममच यथेष्टम विनियोगम प्रभु करोतु, यथेष्ट जैसो प्रभु चाहे ऐसो वाको मेरे जीवन की दिशा होनी चाहिए, मेरे जीवन को की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी बुद्धि रखनो समर्पण में मूल पहलो कारण। जब ऐसी बुद्धि हो जाएगी तो हम भगवत संबंधी समर्पण में हम प्रवृत्त हो पाएंगे। अब यह के बाद नीचे पढ़ लो की दूसरी पंक्ति के, तथा सती, जब या प्रकार को हम निश्चय कर पाएंगे तो स्वसत्ता लेशस्य अपि अभावात्, तो जो हमारी अभिमति है, जाको हम अभिमति कह रहे हो, जाके कारण संसार उत्पन्न हो रहे हो, ऐसो हमारी स्वसत्ता को लेश भी नहीं रह पाएगा, और स्वसत्ता के लेश को के न रहने पर हमारा समर्पण पूर्ण हो सकेगा। यानी हम पदार्थ मात्र में स्वयं अपने अस्तित्व सहित पदार्थ मात्र में जो हमारी अभिमति है, वह अभिमति को हम निवृत्त करें और वहां में भगवदीयता को आवाहन करें, भगवदीयता की समझ हम स्पष्ट वहां में स्थिर कर क्या लाए। अब देखो आगे एक बात को समझो कि कथनचित यदि तदीयता सिद्ध नहीं हो पा रही है, अब फिर पुनः समझने को प्रयास करो। यहां भी तुमको अपने मार्ग की एक बात समझ में आवेगी कि हर एक के लिए भक्ति संभव नहीं है। भगवत सेवा को मार्ग हर एक के लिए नहीं संभव है। या लिए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अतदीयतया चापी, अगर कोई तदीय नहीं हो सके, भक्ति नहीं सिद्ध हो सकती, तो अतदीय पनेसु भी अतदीयतया चापी केवल चेत समाश्रिता, यदि केवल तत्त देव को आश्रय कर लियो जाएगा, आश्रित तदाश्रय तदीयत्व बुद्धियै किंचित समाचरेत। यानी श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अगर तुम अपनी सफलता चाह रहे हो, प्राकृत जगत से संबंधित देवताओं की उपासना करने वाले को भी श्री महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि अगर वास्तव में तुम कुछ अपनी सिद्धि चाह रहे हो, तो या तो तदाश्रय या तदीयता, दोनों में से जो तुम्हारे स्वभाव अधिकार और तुम्हारी क्षमता में होए, वाको तुम समाचरेत, वाको आचरण करो। सम्यक आ, तो सम और आ दो उपसर्ग लगा कह रहे हैं कि वाको तुम करो, वो आचरण करने में ही तुम्हारा हित है। ये कह रहे हैं कि किंचित समाचरित। अब ये किंचित समाचरित को नीचे अर्थ देख लो, सबसे नीचे पंक्ति में किंचित यानी तद अनुकूलम श्रवणाधिकम। फिर मेरी बात पे ध्यान दीजिए,